Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. And as we were discussing about file handling in Python, in the starting itself, we have seen that files are broadly classified as text files and binary files in Python or in any programming language. So अभी तक हमने देखा कि हम text files को कैसे execute करते हैं through a Python program. Today we are going to learn how to execute, how to deal with binary files in your Python program. Binary files basically होती क्या है when any data is represented inside a file in the form it is existing in your storage. So that is known as binary file. Now it could be of any format. Generally speaking, binary file is a file which is not a text file. जो टेक्स्ट फाइल नहीं है कि वो बाइनरी फाइल है कोई भी फाइल हो इट कुड बी ऑफ एनी एक्सटेंशन बट व्हेन डीलिंग इन पाइथन प्रोग्राम so we generally represent it with .dat extension. Now it is not necessary that I am going to use this extension every time. It could be any file in binary format या यूं कह लीजिए कि एनी फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट इज अ बाइनरी फाइल. ठीक है, और वो बाइनरी फॉर्मेट में कब होती है इन माय पाइथन प्रोग्राम व्हेन आई एम गोइंग टू ओपन दैट फाइल विद एनी ऑफ द मोड्स आरबी डब्ल्यूबी एबी या आरबी प्लस डब्ल्यूबी प्लस एबी प्लस. ठीक है, तो अगर मैं किसी भी फाइल को इनमें से किसी भी मोड के साथ खोल रही हूं तो दैट इज माय बाइनरी फाइल in my Python program. Right? Even I can open a text file in my Python program as a binary file. जैसा कि you can see in this example, मैंने लिखा f is equal to open file.txt wb. So now this file.txt is obviously containing some text data, but for my Python program it is a binary file. Fine. और binary file में अब creation और opening of the file तो same ही है, बस हमारा फाइल मोड चेंज हो जाता है. जब मैं फाइल में रीड या राइट करूंगी इन अ बाइनरी फाइल तो आई एम गोइंग टू यूज द पिकल मॉड्यूल. और ये पिकल मॉड्यूल क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझना जरूरी है कि व्हेन आई एम गोइंग टू राइट इनटू अ बाइनरी फाइल आई एम गोइंग टू कन्वर्ट माय ह्यूमन रीडेबल डेटा इनटू अ बाइनरी स्ट्रीम, बाइनरी डेटा स्ट्रीम, because then only it can be written inside my binary file. हमने शुरू में ही जाना है that binary file contains the data in binary format in the format as it is existing in my storage. तो मेरे को अपने डेटा को ट्रांसलेट करना पड़ेगा into binary format before I am going to write it into my file. Similarly, when I am going to read it from the file, so what I am getting is binary data, matlab data in binary format which we cannot understand. As human beings, we cannot understand. So I need to translate that data into human readable form. और उसमें मैं अगेन अपना pickle module यूज करूंगी. It is having two functions, load and dump. Load is for reading and dump is for writing. And obviously, dump is going to translate the data from human readable form to binary format, and load is going to do the reverse of it. Fine. So अब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ती है, import module name. The same way, when I'm going to use the module pickle, I'm going to write import pickle. Fine. And to write data or to read from a binary file, मेरे को क्या करना पड़ेगा, अनपिकलिंग करनी पड़ेगी. मतलब डेटा जो मेरा बाइनरी फॉर्मेट में ट्रांसलेटेड है उसको वापस से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अनपिकलिंग. एंड फॉर दैट आई एम हैविंग द फंक्शन लोड. और लोड को कैसे यूज करेंगे, द जनरल सिंटेक्स इज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल. जिस भी फाइल हैंडल नेम के साथ मैंने अपनी बाइनरी फाइल को ओपन किया है वो फाइल हैंडल यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी स्ट्रिंग, इट कुड बी लिस्ट, इट कुड बी डिक्शनरी, इट कुड बी इंटीजर वेरिएबल एज वेल, इट कुड बी एनीथिंग. फाइन. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू राइट इनटू माय बाइनरी फाइल तो मैं डंप फंक्शन यूज करूंगी जिसको हम बोलते हैं पिकलिंग ऑफ डेटा या पिकल द डेटा. और उसके लिए जो सिंटेक्स है यू कैन सी हियर पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मुझे राइट करना है और जिस फाइल के अंदर राइट करना है उसको मैंने जिस फाइल हैंडल नेम से खोला है वो फाइल हैंडल आ जाएगा.
तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। तो अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टेक्स्ट फाइल को भी बाइनरी फॉर्मेट में खोल सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने अभी क्या किया है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है in which I am going to create a file.txt. It is not existing on my disk. I am going to create it, and then I am trying to write into this file using write method, and then I am closing the file. तो अगर मैं इसको execute करती हूँ तो देखो क्या होता है। It is giving me error. एरर क्यों दे रहा है? इट इज सेइंग दैट अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, नॉट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं राइट होगा, बाइट लाइक ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं करूंगी import pickle, and then I'm going to write f sorry pickle dot dump, और इसी को कट पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया अब, and I'm going to write this object into if। फाइन, फिर मैंने f को क्लोज किया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और अब हम फाइल को ओपन करके देखते हैं। सो ये फाइल मैंने क्रिएट की थी। अब ये देखो, ये जो फाइल है इसमें कुछ और भी आपको दिख रहा है जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है। दिस इज एक्चुअली अ बाइनरी फाइल, और यहाँ तो फिर भी चलो इतना पढ़ने में आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि ये बाइनरी फाइल का जो आप ऐसे ओपन करोगे तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि फाइल में लिखा क्या गया है। ठीक है, सो दिस इज योर पिकलिंग द डेटा। अब इसी को अगर मैं रीड करती हूँ तो आई एम गोइंग टू अगेन ओपन इट विथ माय फाइल हैंडल। सेम फाइल हैंडल मैंने यूज कर लिया, और अब मैं रीड बाइनरी करूंगी। ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू से s is equal to pickle dot load f, and then I'm going to print s। फिर हमने अगेन फाइल को क्लोज कर दिया। फाइन, I'm going to execute it. This is text file in binary mode. So अब देखो, जो हमने फाइल ओपन करके देखा था उसमें जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे थे वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, because they are not part of my data. This is basically a binary file now, though it is having the extension .txt, but it is a binary file. चलिए थोड़ा सा और करके देख लेते हैं। अब इसी में हम string ना राइट करके अब मैं कोई और फाइल ले लेती हूँ। लेट्स से फाइल डॉट dat मैंने लिया। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू राइट इट, और मैं डंप करूंगी इसमें एक ऑब्जेक्ट डी ले लेते हैं। डिक्शनरी में इसमें राइट करने वाली हूँ, एंड देन डिक्शनरी इज गोइंग टू कंटेन लेट्स से roll number and name of some students. So one roll number is let's say Anjali, ठीक है, and two roll number is uh, and let's say three roll number is Shaurya। इतना ही कर लेते हैं, एंड आई एम गोइंग टू राइट इट। अब ये डी मैंने डंप किया, एंड देन आई हैव क्लोज द फाइल, और फिर मैं इस फाइल को फिर से रीड भी कर लेती हूँ। चलो, एंड
यहाँ पे एस ही ले लिया, चल एट क्लोज इतना ही करते हैं, फाइन। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ओ सॉरी मैंने फाइल हैंडल तो दिया नहीं, डी दे दिया सिंपली। यहाँ पे फाइल हैंडल भी तो देना था, एफ। नाउ इट विल बी, तो मेरी फाइल रीड बैक भी हो गई है, देखा हमने। और इस फाइल को हम अदरवाइज भी ओपन करके देख लेते हैं। Again you will find some extra data in that file.dat. So you can see here that मेरा कुछ एक्स्ट्रा कुछ डेटा आ रहा है, कहीं कहीं पे मेरे को वो नाम भी नजर आ रहे हैं जो मैंने लिखे, है ना। और नंबर्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन when I am going to read this through my Python program, I am getting the data जो मैंने write किया था। So this is how we read or write a binary file. एंड जब एक बार मैंने डेटा रीड कर लिया अपने प्रोग्राम में, देन आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विद दैट डेटा। आई कैन राइट इट बैक, मॉडिफाइड डेटा को इनटू माय फाइल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द ओवरव्यू। सिलेबस में ज़्यादा डेप्थ में है नहीं, अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल कवर मोर टॉपिक्स ऑल्सो, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगी फाइल हैंडलिंग के, एज दिस इज माई फेवरेट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग। Thank you so much. I hope this all is clear to you, and this chapter of file handling is over now. Keep watching my videos, keep learning. Thank you so much.